ناظرین، عام طور پر جب پراسرار دنیا کا ذکر ہو، بہت سے ایسی عجوبوں کا ذکر آتا ہے جن کی ابھی تک کوئی قابل قبول وضاحت سامنے نہیں آ سکی۔ ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں برمودا ٹرائی اینگل بھی موجود ہے اور اہرام مصر بھی، لیکن ان سب کے علاوہ نہ جانے دنیا میں کتنے ایسے دلچسپ معمے موجود ہیں جنہیں آج کی ترقی یافتہ سائنس اور ٹیکنالوجی بھی حل نہیں کر سکی۔ ان میں سے کچھ تو قدرت کے چھپائے ہوئے بھید ہیں، جبکہ چند قدیم انسانی تہذیبوں کے وہ راز ہیں جو بے حد کوشش کے باوجود ہم آج بھی نہیں سمجھ پائے۔ اس حوالے سے کچھ ماہرین کا یہ بھی ماننا ہے کہ شاید یہ ہم سے زیادہ ذہین کسی خلائی مخلوق نے بنائے تھے۔ تاہم ماہرین اس حوالے سے مسلسل کوشش کر رہے ہیں، اور آج کی ویڈیو میں ہم ایسی ہی 10 پہیلیوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ بھی کوشش کیجئے، شاید آپ ان میں سے کسی راز کو سمجھ سکیں۔ ناظرین، ایک تباہ شدہ قدیم یونانی بحری جہاز سے ملنے والا اینٹی کیتھرا میکانزم نامی یہ آلہ 17 مئی 1902 کو دریافت ہوا۔ یہ تقریباً 2000 سال پرانا بتایا جاتا ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ یہ آلہ دنیا کا پہلا کمپیوٹر سمجھا جاتا ہے، اور یہ آج کی جدید گھڑیوں کے ڈائل سے مشابہت رکھتا ہے، اور اس میں گراریاں لگی ہوئی ہیں جن سے سورج کی حرکت کا حساب کتاب لگا کر وقت کا درست اندازہ ممکن تھا۔ اس آلے کی مدد سے نہ صرف سورج بلکہ چاند اور 5 دیگر سیاروں کی گردش کا حساب بھی لگایا جا سکتا تھا، اور اسی طرح اس میں ایک کیلنڈر بھی موجود تھا، اور یہ چاند کی گردش کے ساتھ ساتھ چاند گرہن کے اوقات کے تعین میں بھی استعمال ہوتا تھا۔ اس کے ذریعے صدیوں پہلے اجرام فلکی کا پیشگی حساب کتاب صحیح ظاہر کیا جانا بھی ممکن تھا۔ یہ اولمپک گیمز کی 4 سالہ سائیکل کا حساب لگانے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا۔ اس کا گیئر نما نظام اس کے کثیر المقاصد استعمال کو آسان بناتا تھا۔ یہ آلہ اتنی مستند معلومات فراہم کرتا تھا کہ اس کی ایجاد اگلے 1000 سال تک اس سے زیادہ بہتر آلہ نہیں بنایا جا سکا۔ اس بنا پر اس کے متعلق یہ نظریات بھی گردش میں آئے کہ یہ انسانوں کا بنایا ہوا نہیں بلکہ کسی ذہین خلائی مخلوق کی دین ہے۔ تاہم بیشتر ریسرچرز اس نظریے سے اتفاق نہیں کرتے، البتہ وہ اس بات پر حیران ضرور ہیں کہ قدیم یونانیوں نے آخر کس طرح یہ آلہ بنایا جو اپنے دور کے لحاظ سے بہت آگے کی چیز تھا۔ ناظرین، چند صفحات پر مشتمل یہ عجیب و غریب تحریر آج سے 600 سال پہلے وسطی یورپ میں لکھی گئی، لیکن ریسرچرز یہ بتانے سے ابھی تک قاصر ہیں کہ اس تحریر کا کیا مقصد اور مطلب ہے، بلکہ وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ کون سی زبان کی تحریر ہے، کیونکہ یہ دنیا بھر میں اپنی طرز کا واحد نمونہ ہے جس کے حروف کی مثال کسی بھی زبان کے حروف تہجی کے ساتھ نہیں ملتی، اور بظاہر یہ حروف لا یعنی اور بھدے سے دکھائی دیتے ہیں۔ اس تحریر کے 240 صفحات ملے ہیں، جبکہ خیال ہے کہ کچھ افراق ابھی گمشدہ ہیں۔ ان صفحات پر اشاراتی نشانوں کی زبان میں کچھ تحریر ہے، اور بعض جگہوں پر ڈائیگرام بھی بنے ہوئے ہیں۔ ریسرچرز ہر سال اس کے نت نئے ترجمے شائع کرتے رہتے ہیں، مگر ابھی تک کوئی ترجمہ ذہنوں کو مکمل مطمئن نہیں کر سکا۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ یہ اس دور کی ادویات کے بارے میں معلومات ہے، لیکن اس میں دی گئی جڑی بوٹیوں اور پودوں کی تصاویر سے ان کو پہچانا نہیں جا سکتا کہ یہ پودے اور جڑی بوٹیاں کون سی ہیں۔ حال ہی میں جب یہ تحریر کمپیوٹر میں ڈال کر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے اس کو سمجھنے کی کوشش کی گئی تو کمپیوٹر نے اسے ایک ایسی تحریر قرار دیا تھا جو عبرانی زبان کے خفیہ کوڈ ورڈز میں لکھی گئی تھی۔ وہ بہت سے ریسرچرز پہلے یہی نظریہ پیش کر چکے ہیں، لیکن یہ تمام تر ریسرچرز اس تحریر کا صرف 80% حصہ ہی عبرانی زبان کے حروف تہجی سے ملا پائے۔ اس کے باوجود بھی جو تحریر سامنے آئی وہ بے معنی اور بے ربط جملوں پر مشتمل تھی۔ ناظرین، انڈونیشیا کے قریب واقع جنوب مشرقی ایشیا کا وہ واحد ملک جو چاروں طرف سے خشکی میں گھرا ہوا ہے اور جس کو کوئی سمندر نہیں لگتا، وہ لاؤ پیپلز ڈیموکریٹک ریپبلک ہے، جسے عرف عام میں لاؤس کہتے ہیں۔ لاؤس کے پہاڑی سلسلے امیڈ ماؤنٹینز کے درمیان واقع ہموار میدان دیو ہیکل پتھریلے مرتبانوں سے بھرا پڑا ہے۔ ان میں سے چند تو 10 فٹ تک بھی اونچے ہیں۔ یہ پتھریلے مرتبان گزشتہ 2500 سال سے اس جگہ موجود ہیں
हैं और किसी को नहीं मालूम कि ये वहाँ कैसे आए, इनको कौन लेके आया और किसने बनाया और इनका मसरफ क्या है। इन मर्तबानों के पास से मिलने वाली इंसानी हड्डियों की बिना पर माहिरीन बस यही अंदाजा लगा सके हैं कि शायद ये मुर्दों को दफन करने के काम आते होंगे या फिर घरों में अपनी आखिरी आरामगाह की तदफीन के लिए पहुंचाए जाने की मुंतजिर मैयतों के आर्जी मदफन के तौर पर इस्तेमाल में लाए जाते होंगे। दूसरी जानिब मकामी अफराद इन मर्तबानों के बारे में अपनी एक कदीम रिवायती दास्तान सुनाते हैं। उनके मुताबिक ये मर्तबान दरअसल उनकी दोस्त मावराई कुव्वतों और जिन्नात के शराब पीने के जाम हैं, और जब भी इन मकामी कबाइल को इन जिन्नात की मदद से अपने दुश्मनों पर फतह हासिल होती है तो वो जिन्नात उस खुशी में यहाँ जश्न फतह की तकरीबात का एहतमाम करते हैं और इन देव हैकल मर्तबानों में शराब पीकर फतह का जश्न मनाते हैं। इस पूरे इलाके में अमरीका और वियतनाम जंग के दौर में अमरीकी फिजाइया की तरफ से बरसाए जाने वाले बहुत से ऐसे बम बिखरे पड़े हैं जो किसी वजह से फट नहीं सके। इसलिए हुकूमत ने पथरीले मर्तबानों वाले इन 60 मैदानों में से सिर्फ 7 मैदान ही टूरिस्ट के लिए खोले हैं ताकि किसी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। नाजरीन, क्या ये चीज़ कोई हथियार है या खिलौना या फिर इसकी कोई मजहबी हैसियत है? कुछ माहिरीन के नज़दीक ये शायद नजूमियों के इस्तेमाल का कोई आला है, क्योंकि इसके 12 रुख या पहलू हैं और हर रुख के बीच में सुराख है, जबकि दरमियान से ये खोखला है। इसके 12 रुख शायद 12 बुर्जों को जाहिर करते हैं। बहरहाल हकीकत ये है कि पत्थरों या कांसी से बनाए जाने वाली ये चीज़ तकरीबन 1700-1800 साल पुरानी है और अभी तक इसका मसरफ नामालूम है। मुख्तलिफ इलाकों से मिलने वाले इस उजूबे का साइज 1.5 से 4.25 इंच तक मापा गया है। अक्सर पुरानी तिजोरियों में मिलने के बायस ख्याल है कि उस दौर में ये कोई बहुत ही कीमती चीज तस्वुर की जाती थी। नाजरीन, नाज़का लाइन ज़मीन पर खोद कर बनाई गई उन अशकाल को कहते हैं जो बरे-आज़म जनूबी अमरीका के मगरब में वाक़े मुल्क पेरू में मौजूद हैं। ये परिंदों, जानवरों, इंसानों और ज्योमेट्री की अशकाल पर मुश्तमिल हैं। इनमें कुछ तो 1200 फुट तक तवील हैं। माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये अशकाल करीब 2500 साल कबल इस इलाके में पनपने वाली नाज़का तहजीब के लोगों ने बनाई थी। ताहम इनको बनाने के मकसद के बारे में माहिरीन की आराम मुख्तलिफ हैं। इनकी दरियाफ्त के इब्तदाई दौर से ही इनको बनाने के मकसद का खोज लगाने की कोशिशें शुरू हो गई थीं और मुख्तलिफ नजरियात सामने आते रहे, जिनमें से एक नजरिया ये भी था कि ये खलाई मखलूक की उड़न तश्तरियों को जमीन पर बहिफाजत उतारने के लिए रहनुमाई फराहम करने और इलाके की निशानदही के लिए बनाई गई थी। दूसरा नजरिया ये था कि ये इल्मे नजूम के हवाले से बनाई गई हैं। ये भी कहा गया कि ये मजहबी अलामतें हैं और इनके जरिए देवताओं से मदद मांगी जाती थी। नाजरीन, ये शक्ल भी पेरू की खलीज पिस्को बे के जजीरा नुमा इलाके के साहिलों पर बनाई गई है। इसको कैंडरबरा ऑफ दी एंडीज कहा जाता है। गोया नाज़का लाइन्स के मुकाबले में ये कदरे छोटी है, ताहम ये भी उन्हीं की तरह जमीन में 2 फुट तक गहरी लकीरें खोद कर बनाई गई है और तकरीबन 595 फुट तवील है। ये शबी पराकस तहजीब से मंसूब है, जिनका जमाना 200 कबल अज मसीह के लगभग का है। आर्ट के इस नमूने को बनाने का मकसद भी ताहाल मालूम नहीं है, ताहम मुख्तलिफ माहिरीन का इस बारे में अलग अलग नजरिया है। कहा जाता है कि इसको बनाने का मकसद ये था कि बहरी जहाज के अमले को समंदर में 12 मील दूर से ही दिखाई दे जाए और इन्हें अंदाजा हो जाए कि साहिल आने वाला है। कुछ रिसर्चर्स के नजदीक ये विराकोचा नाम के देवता को खराज तहसीन पेश करने के लिए बनाई गई, जो इनका तहजीब में तख्लीक का देवता माना जाता है, जबकि चंद माहिरीन ये समझते हैं कि ये इस खित्ते में पाए जाने वाले एक पौधे की शबी है जिससे नशा आवर अशिया तैयार की जाती थीं। नाजरीन, 2700 वर्ष पहले ये मिस्र की बंदरगाह यानी थोनस हरकलून बहरा रूम में दाखिले का दरवाजा समझी जाती थी। फिर गर्दिश दौरा में ये अहम शहर वक्त के धुंधलकों में गुम हो गया। हजारों साल बीत गए और बिलाखिर 2000 में गोताखोरों के एक गिरोह को समंदर में अचानक कुछ कदीम दौर की चीजें मिली। मजीद खोज लगाने पर उन्होंने मिस्र के साहिलों के करीब जेर समंदर दफन ये पूरा शहर दरियाफ्त कर लिया। ये एक मुकम्मल शहर था
था जिसमें पुल थे, 16 फुट ऊंचे मुजस्समे थे, जानवर की शक्ल वाले पत्थर के ताबूत और इस तरह की बहुत से कदीम अजायबात इस शहर में मौजूद हैं। माहिरीन आसार कदीमा हैरान थे कि आखिर कैसे एक पूरे का पूरा शहर समंदर बुर्द हो गया। ताहम उनका अंदाजा है कि पहली सदी ईस्वी में बैक वक्त आने वाले सुनामी, जल्जले और समंदर की सतह बुलंद होने से इस जगह की मिट्टी पिघल कर दलदल में तब्दील हो गई और अगले 700 सालों में आहिस्ता आहिस्ता ये पूरा शहर मुकम्मल तौर पर समंदर के नीचे आ गया। नाजरीन, यूनान के जजीरे कैरेट और आसपास के जजायर में पनपने वाली कदीम तहजीब मिनियन के ज़ेरे असर फ़रोग़ पाने वाली ये एक बहुत अजीब व गरीब चीज़ है। यहाँ माहिरीन को दो तर्ज़े तहरीर मिले, एक को लाइन्स ए और दूसरे को लाइन्स बी कहा जाता है। ताहम अलग अलग होने के बावजूद ये आपस में मिलते जुलते हैं, मगर माहिरीन लाइन्स ए के नाम से पहचाने जाने वाली तर्ज़े तहरीर के मुतालिक अभी भी रिसर्च कर रहे हैं। ये तर्ज़े तहरीर 1800 से 1450 क़ब्ल अज़ मसीह में राइज था और यूनानी जुबान की बुनियाद पर उस्तवार लाइन्स बी को तो 1952 में समझ लिया गया था, जो हरूफ की बजाय ज्यादातर निशानात पर मुश्तमिल है। लेकिन इस कामयाबी के बावजूद लाइन्स ए की तहरीर के माहिरीन अभी तक नहीं पढ़ सके। ख्याल किया जाता है कि ये तर्ज तहरीर मजहबी तहरीरों के लिए इस्तेमाल होता था और सिर्फ मजहबी रहनुमा ही इसको पढ़ सकते थे। नाज़रीन, चिकनी मिट्टी से बने इंसानों और जानवरों की शक्ल से मिलते जुलते 10-30 सेंटीमीटर ऊंचे ये मुजस्मे जापान में 1400 से लेकर 400 साल क़ब्ल अज़ मसीह में बनाए जाते थे। ये ज़माना जापान की तारीख में जोमोन दौर कहलाता है। माहिरीन आसार कदीमा ने तकरीबन 18,000 मुजस्मे दरियाफ्त किए हैं, मगर बात वही है कि इनको बनाने का मकसद अभी तक समझ से बाहर है। माहिरीन का एक तबका इनको महज खिलौने करार देता है, जबकि दूसरों के नजदीक ये कोई मजहबी अहमियत भी रखते थे। ताहम असल बात अभी तक राज में ही है। नाजरीन, एक मरतबा फिर बर-ए-आज़म जनूबी अमेरिका के मुल्क पेरू का जिक्र करते हैं, जो अपनी इनका तहजीब और इसके अजायबात के लिहाज से माला माल है। पेरू के मशहूर शहर कास्का में पत्थर के चौकोर टुकड़ों से बना हुआ वसीओ अरीज इमारती ढांचा इन्हीं अजायबात में से एक है, जिसके बनाने की वजह से माहिरीन ताहाल नावाकिफ हैं। इसकी दरियाफ्त पर माहिरीन आसार कदीमा का ख्याल था कि शायद ये कोई किला है, लेकिन बाद में उन्होंने चंद शवाहिद की बिना पर अंदाजा लगाया कि ये जगह शायद तकरीबात मुनक्कद करने के लिए इस्तेमाल होती थी। वजह इस्तेमाल चाहे कुछ भी रही हो, मगर ये बात मानने की है कि इसका तर्ज तामीर हैरान कुन है, क्योंकि इन पत्थरों की बहुत खूबसूरती के साथ काट कर इंतहाई मजबूती से एक दूसरे पर जमा कर ये तामीर की गई है। और हैरत अंगेज बात यह है कि इन पत्थरों को जोड़ने के लिए कोई मसाला यानी सीमेंट वगैरह भी इस्तेमाल नहीं किया गया। अगरचे ये पत्थर बहुत आराम से एक दूसरे पर जमे हुए हैं, लेकिन इनकी शक्ल एक दूसरे से मुख्तलिफ है, जिससे ये जाहिर होता है कि इसे तामीर करने वालों ने कोई खास डिजाइन तख्लीक करने के लिए मुख्तलिफ शक्लों के पत्थर काटे और इनसे इसका ये डिजाइन बनाया। याद रहे कि इस दौर की टेक्नोलॉजी के लिहाज से 100 टन तक वजन के पत्थरों को ऊपर उठाना और इस तरह एक दूसरे पर जमा कर कोई चीज तामीर करना एक खुद बहुत बड़ा राज है। इस दौर में ये काम कैसे सरअंजाम दिया गया होगा, क्योंकि ये तामीर 9वीं से लेकर 13वीं सदी के दौरान की गई, इसलिए ये शहर एक कदीम और पुरस्रार अजूबा है। नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।